My dear students, you are all welcome to my popular study channel Students Asset. Today I have decided to discuss about an important part of a speech called verb. VERB verb. ଭର୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ. Verb is an important part of a speech. There are 10 parts of a speech. What are they? Tell me. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, article, demonstrative. and demonstrative. I have already thoroughly discussed about nouns in my previous videos. Now we are going to discuss about verb. A verb is a word used in a sentence to say something about some person, place or thing. गोटे वाक्य रे verb होउची important word जे कि जने व्यक्ति किंबा कोनोसी स्थान किंबा कोनोसी जिनिस विषय रे किछि कहे. verb माने क्रियापद. A sentence has two main parts. The first part is the subject and the second part is predicate. है ना? Verb is an important item in the predicate. Predicate part रे verb होउची गुरुत्वपूर्ण पद. तेबे ए जो verb ता बा क्रियापद देखो एग्जांपल रेबो डांसेस. ए जो डांसेस ता होची verb. डांसेस होची verb. रेबो नाचे. This verb speaks something about रेबो. रेबो कोन करूची ना रेबो नाचुची नाचे. Puri is a famous place. Is the verb. Here in this sentence is the verb. He is reading a book. Is reading hela verb. तेणु एटा बुक गोटे जिनस विषय कहूची एटा गोटे स्थान विषय पुरी विषय कहूची एटा रेबो गोटे पर्सन विषय कहूची. So a verb is a doing word or action word. Then we shall go to the classification of a verb. Verb has been broadly divided into two categories. Verb has been broadly divided into two categories. First is auxiliary verb or helping verb. Second is main verb. Auxiliary verb বা সাহায্যকারী ক্রিয়া I have also discussed in my video number 8 and 9. Auxiliary verb বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ମୁଁ আলোচনা করছি. Auxiliary verb দুই প্রকার, primary auxiliary verbs and modal auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs are those verbs which help in forming the tense and positives and negatives, but negatives and interrogatives. Primary auxiliary verb. They are 11 in a number. Is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had. These 11 verbs are called primary auxiliary verbs, the prathamika kriya, sahajakari kriya. There are 13 moral auxiliary verbs. Will, would, shall, should, may, might, can, could, ought to, used to, must, dare, and must, dare, need. These 13 verbs are moral auxiliary verbs. आस्था सूचक साहाय्यकारी क्रिया. 11 टा होचंती प्राथमिक साहाय्यकारी क्रिया. एही 24 टा जाक को auxiliary verb बा helping verb कहा जाए. Auxiliary verbs काहे के helping verb कहा जाए ना they help the main verbs. These verbs help the main verbs in forming tense, negatives and interrogatives. I have thoroughly discussed about auxiliary verbs in my previous videos number 8 and 9. You will look them and find out the discussion. Now we shall go to discuss about main verbs. Note main verbs. Main verbs कौनती मुख्य क्रिया বা প্রধান ক্রিয়া.
मुख्य क्रिया बा प्रधान क्रिया मेन verbs. Main verbs are those verbs. Main verbs are those verbs which describe a situation. Which describe a situation or event. Which describe a situation or event. Take down. Main verbs are those verbs which describe a situation or an event or actual activity of the subject. Actual activity of the subject. For example, देखो मैं कहबी the earth moves, the sun shines, we eat. Look at these three sentences. In these sentences, moves is the main verb, shines is the main verb, eat is the main verb. So, main verbs describe situations, events, or actual activity of the subject. We eat. In this sentence, we have a subject. आमे खाऊ. तो आमे कौन करू खाऊ? खाଇବା गोटा कार्य, मुख्य कार्य. तो एटा ला मेन वर्ब. हमर सब्जेक्ट रो एटा प्रकृत एक्टिविटी कार्य के बुझौची. The earth moves. पृथ्वी घुरे. The earth moves around the sun. जो moves ला मेन वर्ब. पृथ्वी घुरे सब्जेक्ट रो प्रकृत कार्य संपर्क ध्यान दउची. So main verbs they describe situation, event, actual activity of the subject. ये जो main verbs are also important from which point of view? Now they take four main forms. Main verbs take four main forms. First form is V1 form. V1 form माने present tense form. Second is V2 form माने past tense form. Third is V3 form, past participle form. Fourth is V1 plus ing form, present participle form. So main verbs take these four different forms which we call conjugation. Write down, take down the word conjugation. Conjugation means giving different forms to main verb. Main verb जो चारिटा विभिन्न रूप रहिला V1, V2, V3 ing form. V1 कौन जान लो? V1 कौन? Present tense form. V2 past tense form of the verb, main verb. V3 past participle verb. And V1 ing present participle verb. Giving different forms to the main verb called conjugation of a verb. तो conjugation कौन जान लो? मेन वर्ब कोन जानलो मेन वर्ब माने तार अन्य नाम होची फुल वर्ब बा प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब्स आर ऑलवेज कॉल्ड फुल वर्ब बा प्रिंसिपल वर्ब दे प्ले ए डोमिनेंट रोल इन ए सेंटेंस हला दे कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन ए सेंटेंस बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प देम ओनली इन फॉर्मिंग टेंस एंड नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स नो कि ही इज गोइंग टू स्कूल. This sentence is in present tense. Is the auxiliary verb going to the main verb? मतलब he was going to school. It was the auxiliary verb going main verb. किंतु was कहला माने जाने sentence ता past tense हेगला. तेन tense संपर्क सूचना दबा गले सहाय्य करंती ए helping verb गुडाको. Interrogative हेला माने is he going to school? We eat rice. Do we eat rice? तो ये जो auxiliary verb do he eats fish. Does he eat fish? Does he does not eat fish negative a negative introduce कला बेले हमर auxiliary verb साहाय्य करंती किंतु main verb can be used independently. We eat, we drink, they dance, farmers work in the field. तो ये जो main verb गुडाको can be used independently in a sentence. तेबे वर्तमान तुमे main verb रो definition जानलो example जानलो वर्तमान देखिबा main verb रो classification. Main verbs includes strong verbs and weak verbs, transitive verbs and intransitive verbs,
regular verbs, irregular verbs, finite verbs and non-finite. Let me discuss about all these classifications of main verbs in brief. First, strong verbs and weak verbs. Take down strong verbs. Take down strong, strong verbs versus weak verbs. Strong verbs versus weak verbs. You see, strong verbs, सबल क्रिया दुर्बल क्रिया. देखो सबल क्रिया कौन? You will be astonished to listen to the two words. सबल क्रिया कौन, दुर्बल क्रिया कौन? Now those main verbs which change their inside vowel in V2 and V3 forms are called strong verbs. Inside vowel कौन? देखो example come, COME come. तार past tense कौन हबो? Came. Come, came, come. So this is a main verb. come माने आसीबा. आ जो भावेल टा थिला इनसाइड भावेल माने कम वर्ड रो भितरे ओ नामक भावेल अछि. जेतले V2 फॉर्म हे गला एटा A को चेंज हे गला. O became changed into A. No? तनु या को हम करा strong verb. come is a strong verb. है ना? come, came, come. begin, began, begun. begin रो past tense कौन? began. past participle begun. तो begin रो जो आई जो inside भावेल सेटा A को चेंज हे गला. So you can very successfully recognize the strong verbs in sentences. come, came, come. begin, began, begun. सेपरि अन्य मन अछि हम जो swim, swam, see, saw, seen एटा स्ट्रांग भरा सबल क्रिया इनसाइड वेल चेंज होची. अच्छा से weak verbs के ना weak verbs are those verbs which take suffixes like ed, dt after them. से माने ed, dt नामक सफिक्स बोले पर प्रत्यय V2 V3 फॉर्म रे नियंती. केमिति देखो माने कर मु कहबी कोन ना want want तार V2 कोन हबो? wanted. want बड़ा बेटे को wanted past participle wanted हला wanted तनु एठारे कोन हला want था मूल verb एटा past tense V2 फॉर्म रे wanted हे गला. कोन लागिला? ed. ए जो ed लागिला अपन सफिक्स बा पर प्रत्यय. सेमति पिला kill, k i l l kill तार past tense कोन हबो? kill, k i l l ed. past participle भी kill. ed लागिला. और हम live, l i v live past tense हबो? l i v e d. only d लागिला नोट पिला. तेनु ed. तो ए रखला weak verb. आउ t भी लागिवो. t केमति लागिवो ना t लागिवो कोथरे ना देखो हमर गोटा वर्ड अछि keep. कोन से वर्डा? keep. के डबल ई पी कीप माने रखिबा मेन वर्ब. तार पास्ट टेंस कोन? kept. के ई पीरियड टी लागलानी. पास्ट पार्टिसिपल भी kept. keep, kept. सेबली sleep. slept. ऐसे लेगी slept. keep, kept, sleep, slept. And you will collect other verbs. So these are weak verbs because they take ed, d and t after them. No. There are many students in a class. Some students are strong in English. Some students are weak in English. केतक भलो अछंती केतक के दुर्बल अछंती. तो भलो स्टूडेंट जो माने से माने परीक्षा पे प्रिपेयर करंती ताकर जदी मुखस्थ करचंती गोटा वर्ड मने पडुनी बाकरी. They can change it with another word. अन्य वर्ड को चेंज करी से आंसर लिखि देई पारिबे. They have the ability of कोन चेंजिंग द वर्ड.
बा चेंजिंग द सेंटेंसेस इन देयर ओन लैंग्वेज तेणु सेमती स्ट्रांग वर्ब माने कोन करिवे ना दे कैन चेंज द भावेल इन V2 एंड V3 किंतु वीक वर्ब दे कैन नॉट चेंज भावेल चेंज कर परबेनी बरम किछि सहाय्य आनबे ईडी की डी की ध्यान की लगे ता आंसर देबे जेमते एहला सेमती आ गुने कथा एटी कहबी जे दोज weak strong verbs those strong verbs which take ed after them which take ed they are called regular verbs माने नियमित क्रिया regular verbs माने सेही verb मान को हम regular कहबा से माने सब प्रकृत रे regular verb होछि को माने ना सेही किछ strong verb some strong verbs which take ed after them they are called regular verbs that regular verb माने नियमित क्रिया the weak verbs ना हमरा ed d के नंदी हमरा ed d नेले weak verb नेले डी हां strong verb माने चेंज कर देबे तांगर भाबे किंतु weak verb माने चेंज कर देबे से ed नउचनी d नउचनी those weak verbs take ed after them in V2 and V3 for can be only ed they are called regular verbs ba niyamit kriya out there are some verbs which cannot change in their V2 and V3 they are called irregular verbs aniyamit kriya kemiti na put for are they changing in their V2 and V3 na same hochi semti cost short sh uti short hot 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 आघात करिबा कुतन रखिबा मूल्यांकन करिबा बंद करिबा these verbs are called irregular verbs अनियमित क्रिया है एगला irregular verbs आउ जो ईडी लागला किल वांटेड एला रेगुलर verbs एला स्ट्रांग verbs and weak verbs then we shall go to transitive verbs and intransitive verbs एला transitive verbs कोन transitive verbs का ओडिया होची सकर्मक क्रिया transitive verb होची सकर्मक क्रिया intransitive verbs होची अकर्मक क्रिया Transitive verbs are those verbs which take objects after them to complete the sense. Object. What is the object? Object माने कर्म. Object माने कर्म. देखो we drink milk. We drink milk. In this sentence we is the subject बा कर्ता. Drink हला कौन? main verb. मिल की कोन थी ऑब्जेक्ट मिल की कोन कहला ऑब्जेक्ट माने कर्म एठाला वर्ब एठाला सब्जेक्ट ये जो वर्ब रा ड्रिंक ताकि ट्रांजिटिव वर्ब काहे कोन थी ना इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस आमे जति खाली कहबा वी ड्रिंक आमे पिउ किंतु भाव अर्थ में प्रकाश कला वाक्य रो वी ड्रिंक मिल्क आमे खीर पिउ हैना वी ईट राइस हैना we write poems so those verbs we take objects after them they are called transitive verbs or transitive verbs are main verbs এটা main verb নয় কি তো main verb গুড়া হি হচ্ছে strong verb main verb গুড়া কোন হবি weak verb সেই main verb হউচନ୍ତି regular verb irregular verb এবং transitive verb এতিলা transitive verb আউটা কথা হচ্ছে object जो কইলে means object আউটা বাক্য হচ্ছে my uncle take down my uncle gave me a gift मो मामू मते गोटे गिफ्ट देले तो पिला कहलो ए वाक्य रे दीटा ऑब्जेक्ट मामू कोन देले गिफ्ट देले कोन लगे प्रश्न करे कर्ता को उत्तर रे जहा मियो ताको दे कर्म गिफ्ट हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिफ्ट हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले मुख्य कर्म कहा को देले मते मी हला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो गोटाला वाक्य रे दीदीटा ऑब्जेक्ट भी थाई पारंती तेनु ए जो गेव हैला ट्रांजिटिव वर्ब गेव हैला ट्रांजिटिव वर्ब तो ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स may take two objects in a sentence
गोटा वाक्य रे ट्रांजिटिव वर्ब दुईटा ऑब्जेक्ट नहीं पारंती हला। अच्छा तापरे ये ट्रांजिटिव वर्ब जो वाक्य रे थिबो फ्यूचर रे मु जदी सुविधा हैला पढेबी वॉइस चेंज एई मानकर वॉइस चेंज करबा एक्टिव रो पासिव। आउट इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया ना दोज verbs which do not take any object they are called intransitive verb, they are called intransitive आ ओडिया कोन अकर्मक क्रिया पिला अकर्मक क्रिया तार केमजा वाक्य ना खाली जदी हमें कहिबा लायंस रोआर गोटा वाक्य देली लायंस रोआर सिंह माने गर्जन करंती हो लायंस रोआर they are going तो ये वाक्य रे जो रोआर गर्जन करंती गोइंग एटा इंट्रांसिटिव वर्ब काहे ना आंकर ऑब्जेक्ट नाही हैला आंकर ऑब्जेक्ट नाही तुम जदी मु कहबी दे आर गोइंग टू मार्केट सेटा ऑब्जेक्ट होनी माने हाट को जाउछंती सेटा हे जिबा हमर एडजंक्ट हे जिवो हैला तो हमर ए जो भर मेन भर ऑब्जेक्ट माने कर्ता को प्रश्न करबा कोन कहा तबे जहा उद्देश्य सेटा हला ऑब्जेक्ट तबे हमर ए जोटे कथा भी कहिबी ऑब्जेक्ट आ कॉम्प्लीमेंट बेले पिला माने ट्रबल ए पड़ जांती माने करो ही इज ए फार्मर शी इज क्लेवर हैला he runs क्विकली ये जो वाक्य रे ए जो इज नामक वर्ब रन्स वर्ब एगुडा मध्य ट्रांजिटिव वर्ब नुहंती भाबियो जे एटा ऑब्जेक्ट नेबला एटा कॉम्प्लीमेंट ही इज ए फार्मर एटा जे कॉम्प्लीमेंट शी इज क्लेवर एटा एडजेक्टिव एटा नाउन एटा एडवर्ब ये समस्त होसी कॉम्प्लीमेंट दे कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस he runs quickly runs ता verb एटा एडवर्ब एटा कॉम्प्लीमेंट she is clever ता एडजेक्टिव एटा कॉम्प्लीमेंट फार्मर ता नाउन सेटा कॉम्प्लीमेंट ता नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होई परबे दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स किंतु he writes stories we drink milk they read story books these are examples of objects so object complement जानिलो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब जानलो सब कथा जानला पर शेष रे हम जिबा फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब वेरी इंपोर्टेंट लास्ट डिस्कशन फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब ता ओडिया ता लिखिलियो समापिका क्रिया असमापिका क्रिया फाइनाइट वर्ब अर्थ समापिका क्रिया कोन समापिका क्रिया वर्सेस असमापिका क्रिया हला लेकिन समापिका क्रिया असमापिका क्रिया example I like I want to write a poem hela he wants to write a poem she wanted to write a poem हैला तापरे he is going to school he is going to school she was going to school she was going to school देखो समापिका क्रिया काहाकू कहंती समापिका क्रिया हला ए फाइनाइट वर्ब देखो ए verb that has agreement with the subject is called the finite verb मन दे बुझो a verb
having agreement with the subject in number and a person is called finite verb. ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ଏକମତ, ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉ ପର୍ସନ ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିବ ପର୍ସନ ଆଣ୍ଡ କଣ ଏଟା ହେଲା ଯୋଉ ପର୍ସନ ଯୋଉ ଟେନ୍ସ ହେଇଥିବ ହେଲା, ଭର୍ବ ଆମର ସେଇ ପର୍ସନ ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳିବ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଆଣ୍ଡ ये फाइनाइट वर्ब ऑलवेज कैरीज ए टेंस। गोटे समापिका क्रिया वाक्यर को काल रे अछि टेंस संपर्क सूचना देबो समापिका क्रिया। तुमर सहज सूत्र होछि ए फाइनाइट वर्ब इज द फर्स्ट वर्ब ऑफ ए सेंटेंस। गोटे वाक्यर प्रथम क्रिया ही समापिका क्रिया मन रखबो, कारण गोटे वाक्य रे गोटे वर्ब थाइ पारे, दुईटा वर्ब थाइ पारे, तीनटा थाइ पारे, चारटा भी थाइ पारे हैना। तो समापिका क्रिया के ना फर्स्ट वर्ब, गोटे वर्ब था वाक्य बार्ड्स फ्लाई, गोटे वर्ब होला फ्लाई, एटा समापिका क्रिया फाइनाइट वर्ब। दीटा केमती ना ही इज गोइंग टू स्कूल, इज गोइंग दीटा वर्ब हैला वर्ब ग्रुप, इज हैला फाइनाइट वर्ब, अदर हैला नॉन फाइनाइट वर्ब असमापिका क्रिया। नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट हैज नो एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट कैरी एनी टेंस, टेंस में किसी सूचना दिए ना। अब तीनटा वर्ब था वाक्य ना ही हैज बीन गोइंग टू आवर होम, से हम घर को जाई आसो छी, हैज बीन गोइंग तीनटा वर्ब, हैज बीन गोइंग हैज हैला फाइनाइट वर्ब। चारिटा वर्ब केमती ना योर पेन मस्ट हैव बीन टेकन बाय योर फ्रेंड। चारटा वर्ब न मस्ट हैव बीन टेकन, तो मस्ट फर्स्ट मोरल वर्ब दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब समापिका क्रिया उचित बारे कष्ट नाही। तो देखो केमती आई वांट टू राइट ए प्ले, एई वाक्य रे समापिका क्रिया के प्रथम वर्ब हैला वांट हैला फाइनाइट वर्ब, टू राइट हैला नॉन फाइनाइट वर्ब। जेतोले सब्जेक्ट चेंजेस टू ही था थर्ड पर्सन, तो वर्ब कोन हैला चेंज हैला फाइनाइट वर्ब वांट्स हैला, किंतु नॉन फाइनाइट चेंज हैला की सेही टू राइट हैला। नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज होनी, ही सब्जेक्ट अनुसार एटा वांट्स हैला, एटा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सो द वर्ब टू एस आफ्टर इट। पुनी वर्ब का पास्ट टेंस हैला शी वांटेड टू राइट ए पोएम, वांटेड दा फाइनाइट वर्ब पास्ट टेंस हैला, किंतु नॉन फाइनाइट चेंज हैला की चेंज हैलानी, बुझिपालो। तेनु फाइनाइट वर्ब चेंजेस व्हेन द सब्जेक्ट चेंजेस इन पर्सन एंड कोन टेंस, टेंस जो चेंज वर्ब। अच्छा नंबर भी चेंज हैले, काना आई त थला वांट हैला, ही वांट्स हैला, दे हैले वांट हैइबो। सब्जेक्ट रो वचन बदलु किबा कोन बदलु ना पर्सन पुरुष बदलु, तेबे फाइनाइट वर्ब बदलु, नॉन फाइनाइट वर्ब जाय ना आसे नै, से सेम बस्तु। He is going to school, अच्छा नॉन फाइनाइट वर्ब के ना गोइंग, फाइनाइट वर्ब के is, he was going to school। अच्छा एते नॉन फाइनाइट वर्ब गोइंग एका अछि, किए को टेंस ना जानि परछे, किंतु ए was कहि देबो दिस सेंटेंस इज द पास्ट टेंस, एटा ला प्रेजेंट टेंस। सो द फाइनाइट वर्ब कैरीज द टेंस, सेदेला बर्तने फाइनाइट वर्ब कोन नॉन फाइनाइट वर्ब कोन जानि लो। आ ओटा लास्ट पॉइंट होछि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब रा श्रेणी विभाग मन देई सुनो पिला, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। नॉन फाइनाइट वर्ब केते प्रकार जानिचो ना, नॉन फाइनाइट वर्ब होची तीन प्रकार। फर्स्ट होची जिरन, जी ई आर यू एन डी जिरन। सेकंड होची इन्फिनिटिव, इनफिनिटिव। थर्ड होची पार्टिसिपल, participle, participle. These are three broad divisions of non-finite verbs. हैला फर्स्ट देखो gerund, you will know that gerund means क्रियावाचक विशेष्य पद। gerund means कौन SWIMMING देखो, swimming is a good exercise, swimming is a good exercise। smoking, smoking is a bad habit, हैला। I enjoy
singing. S-I-N-G, I enjoy singing. ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆଉଟା ହେଲା my hobby, H-O-B-B-I, my hobby is gardening, G-A-R-D-E-N-I-N-G, my hobby is gardening. ପିଲା ଜିରୋଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଜିରୋଣ୍ଡ କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବନି। ଜିରୋଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଜିରୋଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଭର୍ବାଲ ନାଉନ୍। ଜିରୋଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ଭର୍ବାଲ ନାଉନ୍ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ the subject of a sentence may be a noun or a pronoun। ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ସର୍ବନାମ ପଦ ହେଇପାରେ। ନ ରାମ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ, ହି ଇଟ୍ସ ୱେଲ୍। ରାମ ହେଲା ନାଉନ୍, ହି ହେଲା pronoun। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନା ଭର୍ବର ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ। ସେ ନଦୀରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ? ହି ଇଜ ସୁଇମିଂ ଇନ ଦ ରିଭର। ଏ ବାକ୍ୟରେ ସୁଇମିଂ ଟା ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଇଜ ଟା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ। ଚିହ୍ନିବ ଯେତେ ଯୋଉଠି ପଢ ପଛେ ପିଲାମାନେ କଲେଜରେ ପଢ କି ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ ଯୋଉଠି ପଢ गोटा इंग्राजी वाक्यर प्रति सेंटेंस रा प्रति वर्ड किए को पार्ट ऑफ स्पीच किए को वर्ब किए एडजेक्टिव किए एडवर्ब सारू पचारी बुझिबो चिन्हबो एतिकी बेलु मैट्रिक सरिया भितरे आ मेन भर नियति 100 200 तार तीनटा चारटा फॉर्म मने रखिथिबो तेबे इंग्लिश रे कॉलेज रे फेयर करिवो सेठाला स्विमिंग दा मेन भर ही इज स्विमिंग इन द रिवर किंतु मु कहबी स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज स्विमिंग दा एठी कोन हैछि ना मुळे रे लिखा हैछि वाक्यर एटा सब्जेक्ट नाउन हैछि verb का noun is ing verb है this is called a gerund swimming is the gerund form of the verb swim when swimming is used as a noun in a sentence comes in the subject position it is called a gerund smoking is a bad habit smoking is a gerund here verbal noun verb has been used as noun gerund रो तीनटा फंक्शन noun है ना gerund ता भी subject रूपे बेहला object है जो केमती I enjoy swimming this is also gerund and gerund का हम कहै नॉन फाइनाइट वर्ब देखो ना फर्स्ट वर्ब की हला ना एन्जॉय एटा फाइनाइट वर्ब एटा नॉन फाइनाइट वर्ब gerund एटा हला ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब my hobby is gardening एटा अछि कॉम्प्लीमेंट gerund has become complement in the sentence is हला फाइनाइट वर्ब फर्स्ट वर्ब एटा नॉन फाइनाइट वर्ब has been used as a gerund हला तापर infinitive का कोनदी ना infinitive क्या कोनदी संज्ञा लिखिनबो the root form of a verb is called infinitive the root form of a verb is called infinitive हला the root form of a verb is called infinitive the root form is verb is called infinitive तुम्हें कौन सा रूट फॉर्म कौन दा रूट फॉर्म जा बेस फॉर्म से है इंफिनिटिव दी प्रकार गोटा होची कोन 2 प्लस इंफिनिटिव 2 प्लस इंफिनिटिव आउटा होची बेयर इंफिनिटिव बी ए आर ई बेयर इंफिनिटिव हला गोटाटा वाक्य रे नॉन फाइनाइट वर्ब नो तापुरु 2 बसबो केमि देखो ना I want to go. I want to read a story book. To read a story book. I want to read a story book. यही बात करें want है finite verb first verb. ये था second verb non finite verb to read. यह तो 2 plus infinity. देखो मतलब 2 plus infinity. Read रो first verb read नो. Read reading. तो 2 plus infinity. एला 2 प्लस इंफिनिटी अच्छा ये जो देखो वांट नामक फाइनाइट वर्ब इंफिनिटी ता डान पटा देला वांट बोले केतरा वर्ब अछि आस्क रिक्वेस्ट प्लान नो आउ ये जो वर्ब गुडा गुनो सब गुडा 2 प्लस इंफिनिटी केमति ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम ताकू साहाय्य करे सबते अनुरोध कले ही आस्क्ड मी टू गो टू
school with him. तो ask, want, request, plan. ଆଉ ये जो verb गुडा रहिला फाइनाइट verb से ताको डाहण पटरे आ गोटा मेन verb रो infinitive रूप बनबे टू प्लस infinitive ओके हमर एंदा वाक्य हम गठन करने अच्छा बेयर infinitive कोन आउ केतना मेन verb अछंती फाइनाइट verb से बेयर infinitive ता पुरु टू लेबे केमिति से verb ता होनी help h e l p h e l p help गोटा लेड गोटा मेड गोटा ये तो ने नोटिस ही और सी ये जो वर्ब गुडा को आप सब देखिबो कलेक्शन करबो बहिरे अछि मु खाली तू धारणा दे देली काहे कि ना आपला काहे धारणा देली करो क्लास रे सब जिनिस विस्तृत भाবে कहिबो ना गुरु कहिबे गोटिए शिष्य अनुकरण करबो कोटिए मु हिंट्स देली तुमे इन दिस मैनर कलेक्शन करिकरी माइंड को ब्रॉड करी सब जानबो देखो लेट मी गो टू let me go on a picnic let me go अच्छा पहला let जोटा भर let me to go हैला की या को bear infinitive कौन दी bear infinitive माने infinitive infinitive कौन दी bear माने तापु to बसिलानी let me go made him दी he made me laugh से बोलो हंसे देले he made me laugh l a u g h से बोलो हंसे देले made देला फाइनाइट वर्ब laugh गुरु टू बसला की तेनु ये जो गुडा को made let help एमान सब बेयर इनफिनिटिव गोटेला टू प्लस इनफिनिटिव गोटेला बेयर इनफिनिटिव तबे ए जो कथा कहले इनफिनिटिव गुडा गुण वाक्य रे तांकर तीन चारि प्रकार फंक्शन अछि कोन ना प्रथम जे से माने सब्जेक्ट हेई परिबे इनफिनिटिव केम देखो गोटा वाक्य टू ईयर इज ह्यूमन टू ईयर इज ह्यूमन टू ईयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन डिवाइन ता माने कोन मुनिनांग मति भ्रम बोले भूल करबा मनुष्यर स्वाभाविक समस्त रे सागे भूल अछि टू फॉरगिव डिवाइन माने क्षमा होची स्वर्गीय गुण तो ये जो 2 ईयर एटा 2 प्लस इनफिनिटिव को एटा वाक्यर सब्जेक्ट हेछि न आ ऑब्जेक्ट केम देबो आई होप टू सी यू अगेन आई होप टू सी यू मु तुम आउ करे देखिया को चाहूची आशा करची तो टू सी ता कोन इनफिनिटिव एटा ऑब्जेक्ट हेछि एटा कोन हेछि ऑब्जेक्ट एटा हेछि सब्जेक्ट पुनी एडजेक्टिव हेई परिबो 2 प्लस इनफिनिटिव केमिति ना I the house is to let हैला the house is to let ए जो घरटी हमर कोन हबो भड़ा रे दिया हबो the house is to the house to let एटा एडजेक्टिव हेछि the house is to let house is adjective आउटा होछि adjunct केम देबो ना I let out a part of my house I let out a part of my house to let to earn money I let out a part of my house to earn money to earn बेटा adjunct तेनु आमे देखिले I let out a part of my house to earn money तो जो टू एलिमेंट सेटा होछि कोन ना 2 प्लस इनफिनिटिव सेटा हला adjunct तो इनफिनिटिव रो चारिटा फंक्शन गोटा हला कोन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट adjunct adjective लास्ट होछि पार्टिसिपल में अध्य गोटे प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल तीन प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल आई सॉ ए डांसिंग गर्ल नृत्यरत बालिका को देखिली सटा फाइनाइट वर्ब डांसिंग होची नॉन फाइनाइट वर्ब एटा पार्टिसिपल आइज वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल एटा प्रेजेंट पार्टिसिपल एटा एडजेक्टिव भया काम कला से भी पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल he sat on a broken chair b r o n broken chair छोटा भंगा चेयर ऊपर बसी बोले sat हला फाइनाइट वर्ब broken नॉन फाइनाइट वर्ब एटा होची पास्ट पार्टिसिपल ब्रेक ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब
He sat on a broken chair. आउरा perfect participle. Perfect participle structure केंते है ना? Having taken lunch. He took rest. Lunch खाई सारी से कौन कर ले? Taken किए के विश्राम ने ले. Having taken ता मध्य non finite verb तार structure होची perfect participle. तेबे verb विषय आज एते कथा जानिलो आउ जहा बाकी रहिला छात्र माने होची अनुसंधिष्ठु. They must inquire into where the other items of the topic is present. सेमाने खोजी बाहर करिवे. मु आज एती कहूची मोर डिस्कशन रे कली verb, auxiliary verb, main verb. Auxiliary verb दी प्रकार primary auxiliary, modal auxiliary. Main verb होची strong verb, weak verb. Regular verb, irregular verb. Transitive verb, intransitive verb. Finite verb, non-finite verb. सरी गला ताऊ देखिबो एक्सरसाइज करिवो शेयर आउ कमेंट करिवो सब्सक्राइब करिवो एवं लाइक करिवो जदि मते कमेंट रे भलो आसिला नेक्स्ट पीरियड रे अन्य कथा ग्रामर पॉइंट डिस्कशन भी थैंक यू चिल्ड्रेन।